Hello students, welcome to my class. In previous lecture we have learned about the derivative of algebraic function, logarithmic function and exponential function. Now next point is derivative of trigonometric function. So in 11th standard we have learned these standard functions. So first function is sin x. D by dx of sin x is cos x. D by dx of cos x is minus sin x. D by dx of sec x is sec x into tan x. D by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x. D by dx of tan x is sec square x and d by dx of cot x is minus cosec square x. So in 11th standard we have find the derivative of all these standard functions which are trigonometric. So how to remind the derivative of that function. सो यहाँ पे देखिए जो c से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं मीन्स कॉस एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स उनके डेरिवेटिव निगेटिव है. देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है निगेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव भी निगेटिव है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव भी निगेटिव है. मीन्स जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव क्या है निगेटिव. ओके तो इस तरह आप इसको भी रिमाइंड कर सकते हैं, आपको इजी जाएगा वो रिमेंबर करने में. सो these 6 standard functions we have explained here. Okay, so also in this chapter you also need these 3 identities, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, cosec square theta plus cot square theta is equal to 1. These 3 properties are more important. You have to remind these 3 properties and the derivative of these standard trigonometric functions. Okay, so our next point is algebra of derivative. So algebra of derivative. अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इस पॉइंट में हम क्या सीखने वाले हैं कि फंक्शन की एडिशन होगी तब हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगी, प्रोडक्ट होगा, डिवीज़न होगा, तब हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है. सो इन अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव इन दिस पॉइंट वी विल लर्न some properties of derivative. So first property is d by dx of k into f of x is equal to k into d by dx of f of x. So this property says that what it said, if some function is multiplied by constant, so the derivative of that function is given by k getting outside and d by dx of f of x. मीन्स क्या होता है इसमें k डेरिवेटिव के बाहर आता है और जो भी फंक्शन है यहाँ पे वो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. मीन्स ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर ही करना चाहिए क्योंकि ये हमें इन एवरी एग्जाम्पल अब हमें ये यूज़ करना है इस प्रॉपर्टी को. सो कोई भी फंक्शन होगा एक्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, उसको अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आता है, ये आपको ध्यान में रखना. मीन्स आपको मैं एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ. सपोज वी टेक एग्जांपल d by dx of 5 sin x, d by dx of 5 sin x. Here f of x is sin x and k is 5. Okay, so इस टाइप का एग्जांपल हो सकता है. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, ये जो 5 है कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव के बाहर और क्या रहेगा d by dx ऑफ f of x की जगह यहाँ पे क्या है sin x. ओके sin x. So by this way you can apply this property. So 5 into you know that derivative of sin x d by dx of sin x, अभी हमने देखा d by dx of sin x क्या आता है cos x आता है. So
डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x इज 5 इंटू कॉस एक्स मीन्स कॉन्स्टेंट बाहर आता है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसके बाद। सो इस तरह आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल we can take d by dx of 6 e raised to x. So here also you can use this property, 6 getting outside of the derivative and it remains d by dx of e raised to x. So what is its derivative? 6 into e raised to x. One more example which we have to use many times, that is suppose 7x. 7x को 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। तो 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स? एक्स रेज टू एन का क्या आता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। सो एक्स का क्या आएगा? एन इज रिप्लेस बाय 1। सो क्या आएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, that is 1 into x raised to 0, that is 1, because x raised to 0 is 1, any number raised to 0 is 1. so x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1। सो यहाँ पे क्या होगा? 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, दैट इज इक्वल टू 7। ओके, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 7x क्या मिला आपको? 7। सो यहाँ पे एक रिज़ल्ट मिलता है हमें, कौन सा? डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के। डी बाई डी एक्स ऑफ 7x इज 7, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के। ये भी एक रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट है। जनरल रिज़ल्ट ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आता है। और ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि हर एग्जाम्पल में इसको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स इज़ के एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? के। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई कंप्लीट। एक्चुअली इसको ये भी कहते हैं कि स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन। अगर स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन हो तो डेरिवेटिव उस पर कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये भी एक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है। अब सेकंड है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मीन्स हमारे पास वन और मोर फंक्शन होंगे, उसकी एडिशन होगी या फिर सब्सट्रैक्शन होगी, तब हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सपोज वी हैव टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। सो लेट denoted by let u is equal to f of x and v is equal to g of x। सिर्फ हमने डिनोट किए u is equal to f of x and v is equal to g of x, ये दो फंक्शन है। तो what is property d by dx of u प्लस v? मीन्स अगर दो फंक्शन की एडिशन हो तो उस पर हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं? So what is property d by dx of u plus v is d by dx of u plus d by dx of v। मीन्स क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई करना है जब एडिशन हो टू फंक्शन की। यहाँ टू फंक्शन है, समटाइम्स देयर विल बी 3 फंक्शन, 4 फंक्शन की एडिशन होगी तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और सब्सट्रैक्शन वैसे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी, मीन्स दो फंक्शन की क्या होगी? सब्सट्रैक्शन। तब डेरिवेटिव आपको कैसे अप्लाई करना है? सेपरेटली अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ओके, सो ये हो गए एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आल्सो कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोडक्ट। मीन्स इफ देयर विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 functions, 3 functions, sometimes there will be product of 3 functions also. So how can find with the derivative of such a type of functions? So there is also property, that is product. We also call it as product rule, and you know that because we are revising all this part which we have learned in 11th standard. Okay, if
again I repeat, if u is equal to f of x and v is equal to g of x, okay, then d by dx of u into v. सो व्हाट इज़ फार्मूला मीन्स अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा u इंटू वी, तो उस पर हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज़ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू. मीन्स फर्स्ट आप किसको भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर है. आप किस मीन्स आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फंक्शन u लेना है, किस फंक्शन को v कंसिडर करना है. ओके, सो इफ़ वी हैव टू फंक्शंस u एंड v, देन product derivative of their product is given by first function as it is into derivative of second function plus second function as it is derivative of first function. Okay, so in this way you can apply the product rule also. d by dx of u into v is u into du by dv by dx plus v into du by dx. If there are three functions u, v and w, then how can you apply derivative on product? Means if there is d by dx of u into v into w, actually we learn about product of two functions, but sometimes there will be product of three functions also. So what is formula? d by dx of u into v into w is u into v as it is d by dx of w plus v into w as it is d by dx of u plus u into w d by dx of v. मीन्स इस ये बड़ा फार्मूला है इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है. इसे ध्यान में कैसे रखना है, देखो जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया है वो छोड़ के बाकी दो फंक्शन यहाँ पे लिखने हैं. यहाँ पे थ्री फंक्शंस है और फर्स्ट टर्म में आपने जिसका भी डेरिवेटिव लिखा हो, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू लिखा है तो बचे कौन से यू वी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिखा है तो बचे कौन से वी डब्ल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ वी लिखा है सो कौन से रह गए यू डब्ल्यू. इसको एक स्पेशल टाइप से ध्यान में रखना है, इससे भी नहीं है, आप ईजिली उसको रिमाइंड कर सकते हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज़ यू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू plus vw into d by dx of u plus uw into d by dx of v. Okay, I will explain it by giving example. Okay, but first of all I will explain the product of two function. So we can take example. Let's see, d by dx of 3x into log x. Okay, there are two functions, 3x is one function, log x is another function. Okay, and their product is given. So हमें क्या फाइंड करना है, d by dx of 3x into log x. So आप किसको भी u कंसिडर कर सकते हैं, कोई 3x 3 रेज़ टू x को u कंसिडर करेगा और log x को भी कंसिडर करेगा. अगर आपको log x को u कंसिडर करना है, 3x को भी कंसिडर करना है, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, इस पर कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो व्हाट इज़ आवर फार्मूला? d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज़ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u. ओके, मैं ये फार्मूला बार बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए. आप भी हर एग्जांपल सॉल्व करते वक्त ये फार्मूला लिखो, जिसकी वजह से आपको वो परफेक्ट ध्यान में रह जाए. ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इंटू लॉग एक्स हमें फाइंड करना है. ओके, सो ये फार्मूला हमारे पास है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का. हमने 3 रेज़ टू एक्स को u कंसिडर किया, log x को v कंसिडर किया. सो बाय दिस फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ 3x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, रिप्लेस कीजिए से u एज इट इज़ मीन्स 3 रेज़ टू x एज इट इज़, d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है हमारा log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस v एज इट इज़, v है हमारा log x इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या है हमारा 3 सो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि प्रोडक्ट होगा तो डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है। अब आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव पता है ए रेस टू एक्स का। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कौन कौन से लगने वाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है। सिर्फ और क्या लगने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री रेस टू एक्स। अब इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स का। 3 रेस टू एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। So 3 raised to x into d by dx of log x is 1 upon x plus log x as it is into d by dx of 3 raised to x। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, d by dx ऑफ a raised to x का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो मैं इसको ब्लू पेन से लिखती हूँ, d by dx ऑफ a raised to x is a raised to x into log a। सो इस स्टेप में आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू एक्स इज बाई यूजिंग दिस फार्मूला 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस। अब जब भी आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो कांस्टेंट हमेशा पहले लिखना। सो लॉग 3 पहले लिखिए, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख सकते हैं, फिर लॉग एक्स लिख सकते हैं। सो दिखने में सिंपल दिखता है इसलिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स क्या मिलेगा आपको, 3 रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग 3 इंटू 3 रेस टू एक्स इंटू log x। okay, so we have discussed about algebra of derivative। so first is scalar multiple of any function, second is addition and subtraction of functions, and third one is multiplication of functions। okay।